Hello viewers, today I am going to tell you about the Flash interface panel and the most useful panel in the Adobe Flash is Tools. The Tools menu is probably the most used panel in Flash. In it are the tools needed to manipulate items on the stage. It can also be used to do action on timeline. First is selection tool, sub-selection tool, line tool, lasso tool, pen tool, text tool, oval tool, shape tool, pencil tool, brush tool, free transform, fill transform, stroke tool, fill tool, eye drop and eraser. All these are tool, and hand tool and zoom tool. Then for color, that is a stroke color and this is a fill color. Then set as a black and white, both stroke and fill color, and no color, and then swap the black and white position for stroke color and fill color. Then snap to object, tool specific option. The selection tool select whole object, sub-selection tool select partial object, line to draw the line, lasso tool selecting irregular shape piece of object, pen tool drawing non-straight and curved line, text tool inputting a text onto the stage, oval tool drawing the oval and circle. But when you press hold key, then it will draw the perfect circle. Shape tool by default draw rectangle, but if you press the shift key, then it will draw the square. Pencil tool free drawing thin line, and the brush tool free drawing brush shape. Free transform scale rotate and skew on object. Fill transform to distort the gradient fill on an object. Then stroke tool change the color and size of stroke. Fill tool change the color of fill. Eye drop sample color from stage. Erase uses a brush to erase the part of the object. Hand tool used to drag the stage ground around to see not visible part of it. And zoom is zoom in or zoom out. And then property panel. First of all, I will describe the whole tools which you must know to how to operate it. So come in Flash to do it. For that you take a new file as I told you yesterday. Then open file and new. Then you will get this stage, working area of stage. Here you have to draw something to select it. First is a selection of tool. So press this one and press shift and you will get an oval or you will get a round with shift. Then now you select it. This will select the whole round, and this will sub-selection. So sub-selection means you have to select some portion of the object. Then this one is a free transform. When you select it, then you can change your position. You can increase or decrease it. And then gradient. Gradient transform means here you can change the color of the object by selecting it, and here the linear, then you select this, then here this one. This way you can change the color of oval. Clear? You can make a gradient or you can make a this one. Then line. Line means you can draw the line, मोटा पतला जैसा चाहिए. And then lasso tool means you are selecting some portion of your object. Clear? So make something more.
by brush here, and then select by it. And then fill. Then pen tool. Then pen tool. Modify. Symbol. Shape. Combine object. Zoom in. Zoom out. This one is used. Now I have to use this one. When you press this one, your color is blue. Change it into black and press this one. Then you can change your outline color. Suppose you want to change this one, choose some color and select this bucket and press this one. Then you can change your color. From here you can make a figure which is not a polygon. You can make a polygon. This way you can make a polygon with use of this pen. From alphabet you can write the alphabet and you can change the font color and different property here. Size, suppose you want 11, then you want style, bold, then you want size 9, it can reduce, syntax, font हो गया, स्टाइल हो गया, साइज हो गया, अलाइन, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, लेटर स्पेसिंग, इंक्रीज करेंगे तो बढ़ जाएगी और डिक्रीज करेंगे तो घट जाएगी. Then checking spelling, you can check whether it is correct or not. Then you can check spelling setup. This way you can do anything with typing. Now you want to make a perfect round. For that you press shift and round tool, then you will get perfect, and if you draw then you will get the oval. When you want a perfect square, then you have to press the shift plus square, and if you want a rectangle then don't press shift, it will give you a rectangle. The pencil will draw something which you want. Suppose you want to make any cartoon, and you can, and brush will also help you. For brush you can choose the size of the brush, small, big, whatever you want, and then this I told you, ink bottle will fill the watercolor, and paint bucket will fill you inside
color. Then this will choose the color. If you use this, then you can choose any specific color and you can fill it. The red color is chosen by you. Then rubber will delete the unwanted. Here you need a small brush, so take this one for deleting this. Clear? Then suppose some portion you won't be able to see, then do this pan tool and you will get the portion which is not visible to you. Then zoom plus, then it will increase the size of your picture, and when you use minus, then it will decrease the size of your picture. Then color, sketch color, stroke color. Then suppose you want red and use the brush, then you will get red. Clear? And this color I want to change into blue. So when you use the bucket, it will give you a single log. Okay, then it will give you a, it is some open somewhere, that's why it is not filling it. Here means you can swap the color, black and white color. Here means no color. Here means swap color. Black का white हो जाएगा, white का black हो जाएगा. Then don't close gap, close a small gap, close medium gap, close large gap. तो जो क्लोज होगा तो आपका रंग फिल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. इस तरह से ये सारे टूल हमने आज बता दिए आपको. अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है. अब इसके बाद आया कस्टमाइज टूल पैनल, ब्रश टूल. अब इन सबको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या क्या ऐड करना है, क्या नहीं ऐड करना है. हैंड टूल हमारे पास सब ये सब है ही है. सिलेक्शन टूल है, ये जूम टूल है, ये पॉली स्टार टूल, यू कैन ऐड द पॉली स्टार टूल. एंड और क्या है इसमें एक्स्ट्रा, और तो कुछ नहीं दिख रहा है. ओके, तो एक टूल और आ गया, पॉली स्टार टूल आ गया. यहाँ पर आप लाइन कैसी खींचना चाहते हो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है. सपोज यू हैव टेकन अ पेंसिल, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन स्ट्रेट हो, स्मूथ हो, इंक वाली, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के करना है आपको. स्ट्रेट लाइन लिया तो देखिए ये चेंज हो गया. अब स्मूथ लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा. ऐसा भी आप कर सकते हो. और इंक वाला लेंगे तो इसमें ज़्यादा मूवमेंट है. ठीक, अब आया हमको फाइल, एडिट, सिलेक्शन रेक्टेंगल. अब हमको यहाँ पे लाइब्रेरी पैनल है, यहाँ पे कलर मिक्सचर पैनल है, यहाँ पे टाइप के अनुसार लेना है, रेडियल बिटमैप, ये सब हमने बता ही दिया आपको. लाइब्रेरी में क्या है, आपको कल हमने बताया था कि सिंबल कैसे बना के डालते हैं. आज फिर बता देते हैं. इसको बंद करते हैं, न्यू करते हैं, इसको सेव नहीं करना है हमको.
तो न्यू किया। सिंबल कल बनाया था, सिंबल बना सकते हैं, इसको यहाँ पे किया, इसको फिल करेंगे, यहाँ पे कलर चेंज करो, ठीक है। फिर यहाँ पर पेस्ट इन सेंटर, क्लियर, डुप्लीकेट, सेलेक्ट। अब इसको सेलेक्ट किया हमने, मॉडिफाई में गए, कन्वर्ट टू सिंबल, तो यहाँ पर देखो कन्वर्ट टू सिंबल आ जाएगा। मूवी क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो हमारा एक सिंबल लाइब्रेरी में आ जाएगा। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसको फोल्डर में रख सकते हैं, अपनी एक फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे अनटाइटल है, आप अपना फोल्डर बना लीजिए। यहाँ पर न्यू लाइब्रेरी पैनल है, यहाँ पे पिन करंट लाइब्रेरी कहीं पे आप दिखा सकते हो उसमें से यूज करने के लिए, ठीक है। सिंबल बन गया ये। अब इस सिंबल को हमने कल जो मोशन ट्विन बताया था उसको फिर से बता देते हैं। यहाँ पे देखो सब दे रहा है, रूलर दिख रहा है हम लोगों को, ग्रिड, अगर आप ग्रिड करोगे तो शो ग्रिड कर देगा, ये आ गया। और क्या है, गाइड्स, ये सब अभी बहुत एडवांस है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। पहले जितना हम बता रहे हैं उतना कर लीजिए। फिर सीन में भी जा सकते हैं, सीन 1 हमारा चल ही रहा है। एडिट में अनडू, कन्वर्ट टू सिंबल, रिपीट, कन्वर्ट टू सिंबल। अब उसको अगर ग्रिड को हटाना है तो ग्रिड में जाकर एडिट ग्रिड कर दिया या शो ग्रिड को हटा देंगे। इसके साथ साथ इसमें शॉर्टकट भी देता जा रहा है, ये देखिए सारा दिया हुआ है। कंट्रोल Z से अनडू सिंबल हो जाएगा, कंट्रोल Y से रिपीट सिंबल हो जाएगा, कट पेस्ट कॉपी आप लोग जानते ही हैं, बैक स्पेस से क्लियर होगा, कंट्रोल D से डुप्लीकेट होगा, कंट्रोल A से सेलेक्ट होगा, डीसेलेक्ट। और एक दिन हम पूरा लेक्चर शॉर्ट की पे लेंगे जिसको आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि आपको काम करने में इसमें आसानी हो। अब इसी को एडिट करना है तो एडिट सिंबल करेंगे, और अभी क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल लिया और सिंबल को उसी जगह पर एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्लस साइन आ रहा है, इसको बीच में होना चाहिए इसके। फ्री ट्रांसफॉर्म किया, अब इसमें इसको बड़ा करना है, शिफ्ट या छोटा करना है, क्या करना है इसको देखना पड़ेगा। अब कैसा करना है कर लीजिए। अभी आया पेस्ट स्पेशल, देन डुप्लीकेट, सेलेक्ट ऑल हो गया। फिर आया एडिट, डीसेलेक्ट ऑल, पूरा डीसेलेक्ट हो जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस फॉर टेक्स्ट है, फाइंड नेक्स्ट टेक्स्ट के लिए, टाइम लाइन, कट फ्रेम, कॉपी फ्रेम। एंड व्हाट इज अ फ्रेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टाइमलाइन में जितने छोटे बॉक्स होते हैं वो फ्रेम कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपने इसको लिया, अब जब हम दूसरा फ्रेम बनाते हैं तो इंसर्ट, राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम करते हैं। दैट मीन्स कि यू आर कॉपिंग सेम सिंबल अप टिल 20 फ्रेम्स। जो छोटे छोटे बॉक्स हैं फ्रेम है, लेकिन जहाँ पे कॉपी हुआ वो की फ्रेम है। तो पहले हमारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी, अगर तो यहाँ पे आकर हमारी अगर पहले इंफॉर्मेशन यहाँ थी, अगर इंफॉर्मेशन यहाँ थी तो अब यहाँ पर आकर वो इंफॉर्मेशन मान लीजिए यहाँ आ जाती है। तो अब यहाँ पर इसको मूव कराने के लिए हमने क्या बताया था, क्रिएट मोशन ट्विन, ठीक है। तो ये यहाँ तक आया था, इसको प्ले कराने के लिए क्या कहते हैं, कंट्रोल प्ले। तो हमारा राउंड यहाँ से यहाँ तक आया था, ठीक है। एडिट मेनू में क्या क्या है, फाइंड नेक्स्ट, टाइमलाइन,
अब टाइमलाइन में कट फ्रेम, कॉपी फ्रेम, पेस्ट फ्रेम, क्लियर फ्रेम, रिमूव फ्रेम, सेलेक्ट ऑल फ्रेम। तो सेलेक्ट ऑल फ्रेम करेंगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कंट्रोल ऑल्टर ए, सेलेक्ट ऑल फ्रेम हो गया। जैसे यहाँ गया, जैसे जितने फ्रेम में तुमने काम किया उतने फ्रेम सारे सेलेक्ट हो गए। लेकिन जिसमें डॉट आ जाती है वो की फ्रेम होती है। जैसे यहाँ पे सिंबल बनाया हमने, फिर यहाँ पे सिंबल बनाया, तो वो फ्रेम से मिलके क्या बनता है, लेयर बनता है। लेयर को हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। लॉक लगा देने से क्या होगा, जो आपने सेटिंग की है वो फिर गड़बड़ में होगा, और इसको कर देने से क्या होगा, उसका बीच का कलर गायब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लेयर को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, फोल्डर इंसर्ट लेयर फोल्डर। कितनी पहले फोल्डर बनाएंगे तब लेयर बनाएंगे। ये गाइडलाइन है। गाइडलाइंस मीन्स है कि जब आप सेट कर देते हो कुछ तो उसी पाथ पर वो चलेगा। जैसे सपोज हमने गाइडलाइन बनाई इस लेयर को, ठीक है। अब गाइडलाइन बनाने के बाद यहाँ पे सिंबल आया और इसमें पाथ को हमने क्रिएट किया। ये लेयर लॉक थी ना, इसलिए नहीं लिया उसने। अब फिर से लो, अब इसको, ठीक है। लेकिन अब हमारा सिंबल ये जो था, इसको सेलेक्ट करो। सिंबल में ये राउंड जो होना चाहिए लाइन पे लगा होना चाहिए, और फिर इसको उठा करके इसी राउंड से इसको उठा करके इसके राउंड को यहाँ पर सेट करना होगा। ठीक, यहाँ पे सेट हो गया। अब इसको प्ले करके देखो, तो ये नहीं हुआ, मतलब सेटिंग ठीक नहीं हुई है। तो यहाँ से इसको ले जाओ, इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से देखो, इसमें लगाना पड़ेगा। ये हुआ। अब करके देखो, प्ले, तो यही प्ले हो जा रहा है। इसको फिर हम बता देंगे। अभी देखते हैं कुछ इसमें सेटिंग में गड़बड़ हो रहा है। ये यहाँ पे ये देखो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसको फिर से डिलीट कर दें। इस लेयर को लिया और यहाँ पर, और इसमें लाइन खींचा, फिर यहाँ पे आए, इसको सेलेक्ट किया, इसको इसके बिल्कुल पॉइंट पे सेट होना चाहिए। ये आ गया इसमें पॉइंट। अब इसको यहाँ पे इसको सेट करके इसमें पहनाना पड़ेगा, इसमें सेट होना चाहिए। अगर इसमें सेट नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा। अब करके देखो, कुछ गलत ही सेट हो रहा है। इसको हम कल बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, अभी कल इसको बता देंगे गाइडलाइन। अब इससे क्या होगा, इससे लेयर डिलीट होगी, डिलीट लेयर। अब जो लेयर तुमने सेट किया वो वाली लेयर, ये वाली मान लो तुमने सेलेक्ट की तो ये डिलीट हो जाएगी, ये वाली लिया तो ये डिलीट हो जाएगी, है ना। अब करके देखो, कंट्रोल प्ले, दूसरी जगह सेट हो गया है ना, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। इसको यहाँ पे करें, फिर यहाँ आए, ये हो ही गया। अब इसको कंट्रोल किया, अब प्ले किया, उसका पॉइंट नहीं सेट हो रहा, उसको देखना पड़ेगा।
अब चलो ये हो गया। अब आया व्यू एडिट में, और क्या बचा था, फाइंड एंड रिप्लेस टाइम लाइन हो गया, एडिट डॉक्यूमेंट। अब इसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो एडिट डॉक्यूमेंट कर दोगे तो यहाँ एडिट हो जाएगा। अभी हमें करना नहीं है इसलिए सीन 1 पे जाएंगे वापस, और प्रेफरेंस ये हम कल बताएंगे। कस्टमाइज टूल पैनल कर सकते हो, ये हमने अभी बता ही दिया, हमने एक और जोड़ दिया। फिर आपका आया फॉन्ट मैपिंग और कीबोर्ड शॉर्टकट। तो कीबोर्ड शॉर्टकट, प्रेफरेंस और फॉन्ट मेकिंग हम कल बताएंगे। अनडू क्लियर फ्रेम सेक्शन, अगर कोई फ्रेम डिलीट हो गया गलती से तो उसको हम अनडू कर सकते हैं या रीडो कर सकते हैं। पेस्ट इन सेंटर, बिल्कुल सेंटर में पेस्ट होगा। पेस्ट स्पेशल से, जो स्पेशल तुम्हारी पिक्चर है ASCII फॉर्म में क्या है उसको हम ले सकते हैं। बिगिनर्स गाइड टू अडोब फ्लैश पर ये हमारे पास था, उसको उसने पेस्ट कर दिया। So today's tool are finished, and tomorrow I will tell you about the left menu of the edit menu, कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा प्लेस करना है उसी प्लेस पे। और फाइल मेनू में तो सारा कुछ सेम है, सेव एज कॉम्पैक्ट, सेव एज टेम्पलेट आप लोग जानते ही हैं, प्रीमेड फॉर्मेट होता है। सेव ऑल से जितने भी बने वो सब सेव हो जाएंगे। सेव एंड कॉम्पैक्ट से प्रेस होके प्रिंट हो सेव होगा। ओपन रिसेंट जो चल रहा है, क्लोज ऑल, क्योंकि कई सीन बनते हैं ना तो सबको सेव करना होता है। इंपोर्ट कर सकते हो फाइल को, एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी कल हमने बताया था पब्लिश सेटिंग कैसे करते हैं, उसको प्रीव्यू कैसे कहते हैं, उसको पब्लिश कैसे करते हैं। पेज सेटअप, इसमें जा करके यहाँ पे पेज कितने साइज का होना चाहिए वो सारा, पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, फर्स्ट फ्रेम ओनली, एक्चुअल साइज क्या है इसमें देख लो, एक्चुअल साइज, फिट ऑन वन पेज, स्टोरी बोर्ड बॉक्स, स्टोरी बोर्ड ग्रिड, स्टोरी बोर्ड ब्लैंक, इतने टाइप के पेज दिए हुए हैं, वो सब कर सकते हैं हम। लेके उसको सेट करेंगे। फिर और क्या आया फाइल में, पेज सेटअप हो गया। प्रिंट कर लेंगे, सेंड कर देंगे, जिस जगह हमको भेजना है वहाँ सेंड करने पे इंटरनेट पे वो चला जाएगा, जहाँ भेजना है आप उसको भेज सकते हो। तो अभी तो ये देखो आउटलुक मेल से भेज रही है किसी को, तो अभी तो ये ख़त्म हो गया। अभी इसके बाद आता है प्रॉपर्टी पैनल। प्रॉपर्टी पैनल इज यूज्ड टू मॉडिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑन स्टेज। अब स्टेज क्या है, जो वर्किंग एरिया होता है हम लोगों का वो स्टेज होता है। ओपनिंग द हेल्प पैनल, द फ्लैश हेल्प, ये जो नीचे आएगा इसमें सब प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं कि क्या क्या हम कितने फ्रेम लिया, क्या लूप होगा कि नहीं होगा, उसकी साइज क्या होगी, उसका सेटिंग ट्विन कौन सा होगा। टू ओपन द हेल्प पैनल सेलेक्ट हेल्प, फ्लैश हेल्प और प्रेस F1। F1 प्रेस करने पे पैनल का प्रेस हो जाएगा। अभी क्या किया हमने, प्रॉपर्टी में जाना था, इसमें ये आ रहा है प्रॉपर्टी, ये देखो ये आ रहा है। इसको जब खोलोगे तो ये प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये देखो ये पैनल आ गया ना। डॉक्यूमेंट अनटाइटल टू साइज 550 400 पिक्सल, बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये प्लेयर 8 एक्शन स्क्रिप्ट अभी हमको लेना नहीं, एक्शन स्क्रिप्ट। फ्रेम रेट 12 PS है, इसको बढ़ाना है तुम बढ़ा सकते हो, घटाना है घटा सकते हो। मान लो यहाँ पे 20 PS कर दिया, अब कंट्रोल करके प्ले करके देखो, है ना, तो धीमा हो गया। यहाँ पे ये देखो फ्रेम रेट यहाँ से भी चेंज हो जाएगी। ये आया 1 पॉइंट कितने सेकंड होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्रिएट फ्रेम, अगर कोई फ्रेम बनाना है यहाँ पे गए क्रिएट फ्रेम, यहाँ से क्या करेंगे ऑनियन स्किन,
एक ही सिंबल का ढेर सारा वो दे देगा। यहाँ से क्या होगा, ऑनियन स्किन विदाउट कलर। यहाँ से क्या होगा, इसमें देता है कितनी बार करना है, 2 बार 5 बार, ऑनियन ऑयल। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये दे दिया इसने। तो अब इसको रन करके देखो, कंट्रोल प्ले। ठीक, ऑनियन कर देने से कहाँ तक आया और कितने फ्रेम हुआ वो इससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। इसमें करोगे तो कलर के साथ आएगा, इसमें करोगे तो ब्लैंक आएगा, और इसमें करोगे तो ऑलवेज शो मार्कर, ऑलवेज एंकर ऑनियन, ऑलवेज ऑनियन 2 तो 2 ही आएगा, ऑलवेज ऑनियन 5 तो 5 आएगा, ऑलवेज ऑनियन ऑल तो शुरू से लेकर के अंत तक आ जाएगा। अब ये इस पोजीशन पे मान लो हमको ऑनियन नहीं दिखाना है ना, ऑलवेज ऑनियन एंकर ऑनियन, एंकर ऑलवेज शो मार्कर, यहाँ पे ये सब नहीं दिखाना है हमको। तो इस जगह को उठा करके हमको मान लो यहाँ पे देना। अब कैसा दिखाएगा ये, अब हम यहाँ पे ऑलवेज शो मार्कर, अब कंट्रोल करके प्ले करते हैं। नहीं दिखाया, यहाँ पे करके ऑनियन ऑल कर दो। अब कंट्रोल प्ले, यहाँ पे हमने ये शायद भूल गए करना। ये इस तरह से डिफरेंट वे से हम चीज़ों को दिखा सकते हैं। जब ये कर देंगे तो दोनों तरफ का गोला दिखेगा, जब ये कर देंगे तो केवल लाइन दिखेगी, जब ये कर देंगे तो गोले के साथ कलर भी लाइन का दिखेगा। और इस तरह से हम मोशन ट्विन को कर सकते हैं। अब यहाँ से मोशन ट्विन जो किया है हमने, इसमें रोटेट, ऑटो, इरेज, इरेज भी करता जाएगा, इरेज मान लो 1 करता जाएगा 1, मोशन, अब मोशन क्या किया, शेप करेंगे तो 2 शेप लेना पड़ेगा, अभी हमने एक ही शेप लिया हुआ है। तो ओरिएंटेशन टू, ओरिएंट टू पाथ, सिंक्रोनाइज, स्नैप्स, ये हुआ। साउंड कोई नहीं दिया, यहाँ पे साउंड दे देंगे तो साउंड भी आ जाएगा। अब इफेक्ट्स अभी नहीं दिया है हमने, इसमें यहाँ पे आए, ठीक है, नन किया है। इवेंट क्या है, स्टार्ट, स्टॉप, स्ट्रीम, रिपीट। अब रिपीट एक बार इसमें दिया है, इसमें मान लो 2 बार दे देते हैं, तब क्या करेगा, इसको किया कंट्रोल प्ले। ठीक, देखो रुक रुक के चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब आया रोटेट, ऑटो है, रोटेट क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज करा। नाउ प्रेस कंट्रोल प्ले, तो घूमता हुआ जाएगा। अब क्लॉकवाइज करा हमने, अब हमने क्या किया, इसको इस पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लॉकवाइज कर दिया। अब इसको काउंटर क्लॉकवाइज करके देखो, तो कंट्रोल प्ले, उल्टी तरफ घूमेगा, ठीक है। एक यहाँ पे लेबल दे सकते हो, यहाँ पे फ्रेम लेबल दे सकते हो। तो इतने फ्रेम का लेबल कौन देगा, बस इतना ट्विन में सारा कुछ हमने बता दिया है, और ये सारे भी बता दिए तुमको, ये टूल्स भी बता दिया हमने, फाइल का सारा बता दिया, एडिट में सारा बता दिया। एडिट का नीचे का 4 बचा है जो हम कल लाइन बताएंगे, और मोशन गाइड बता देंगे, और फिर आएगा व्यू। व्यू में गो टू, जूम इन, जूम आउट, मैग्निफिकेशन बता ही चुके। गो टू में है फर्स्ट, प्रीवियस, ट्विन 2, ट्विन 1, किस पे जाना है, रूलर दिखेगा, ग्रिड दिखेगी अगर आप दे दोगे शो ग्रिड, ये व्यू में। और स्नैपिंग बताना है कल, फिर हाइड एज, एज नहीं दिखेगी,
फिर आया ग्रिड को फिर से बंद करना है, शो ग्रिड को हटा दो। इस तरह से 3 मेनू हो गए हम लोगों के ऑलमोस्ट। एडिट में थोड़ा बचा और व्यू में थोड़ा बचा। इंसर्ट में हमने बता ही दिया, सिंबल बनेगा, टाइमलाइन, इफेक्ट्स बनेगा। टाइमलाइन हम कई टाइमलाइन में ले सकते हैं, लेयर, फोल्डर, मोशन गाइड, फ्रेम, की फ्रेम, ब्लैंक की फ्रेम। अब बीच में अगर हमें कुछ छोड़ देना है, कुछ देर कुछ ना दिखे, तो हम क्या करेंगे, देखो फ्रेम के लिए F5 दिखा रहा, मतलब F5 दबाएंगे तो फ्रेम बनता जाएगा। की फ्रेम हमने बताया है कि राइट क्लिक करके की फ्रेम बन जाता है। F5 करके देखो, F5 से कॉपी होता जाता है, ये देखा, फ्रेम बढ़ता जा रहा है। अभी क्या होगा, आप कंट्रोल करके प्ले करके देखो। ठीक, यहाँ से यहाँ तक तो मोशन ट्विन है, इतना फ्रेम हमने अभी ऐड किया है। तो इसको अगर स्टार्ट को यहाँ ला के रख दोगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मोशन ट्विन हो जाएगा। दैट मीन्स इसको जब हम करेंगे तो स्टार्ट ओनियन स्किन और यहाँ पे एंड ओनियन स्किन सेट हो गया है ना। लॉक लगा दोगे तो तुम्हारा कोई नहीं दिखेगा, ये देखो दिखेगा ही नहीं, और इसको लगाओगे तो लाइन केवल दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट चीजें हैं इसमें, जो धीरे धीरे आप सीख लोगे। अभी आज बहुत हो गया, इसको बंद करते हैं। अगर तुमको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो लोगों में।